اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. ان آیات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حلال روزی کما کر کھانے کا حکم دیا. کل بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کو بتلانا چاہتے ہیں اور احکام کو بتلانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسماعیل کا تذکرہ فرما کر تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دیتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، وہ جو کچھ بھی زمین میں سے اگتا ہے، حلالا طیبہ، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ. حلال یہ عربی لفظ ہے، اس کو ہم حلال کہتے ہیں، اور گجراتی میں بھی اور اردو کے اندر میں بھی. جس چیز کے کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کھانا حلال، جس کو کرنے کے لیے حکم دیا اس کا کرنا حلال. لغت کے اندر میں اور ڈکشنری کے اندر میں یہ حلال کا جو لفظ ہے یہ حل یحل سے بنا ہوا ہے. حل یحل، حلال کا معنی ہے چھوڑ دینا، گرہ کو کھول دینا. اگر کسی دھاگے کے اندر میں گرہ لگی ہوئی ہے اس کو اگر چھوڑ دیں، یا اگر کسی اور چیز کے اندر میں گرہ لگی ہوئی اس کو چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں حلال. تو حلال کو بھی حلال اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر میں سے پابندی کو ہٹا دی اور اس کے کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا. اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے طیباً کا، یعنی پاکیزہ. اب یہاں پر علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزی اور پاکیزہ روزیوں کا دار و مدار کن پر چھوڑا. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में नाजिल फरमाया। कुरान पाक अरबी ज़बान के अंदर में नाजिल हुआ और ऐसे लोगों के ऊपर में नाजिल हुआ कि जिनकी ज़बान जो है वो अरबी थी, मादरी अरबी ज़बान जानने वाले थे। इसलिए हलाल और पाकीज़ा चीज़ों का मेयार और मापदंड अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेयार बनाया कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों को अच्छा समझे, ये हलाल और तय्यबा और पाकीज़ा, अरबों को मेयार करार नहीं दिया। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है कि अरबों को मेयार इसलिए करार नहीं दिया कि नबी आखिरुज़्ज़मान जो नबी बनाकर दुनिया के अंदर में भेजे गए, सिर्फ़ अरबों के लिए नहीं भेजे गए या सिर्फ़ अरबस्तान वालों के लिए नहीं भेजे गए। पाकीज़ा और तय्यबा और हलाल रोज़ी का दारो मदार अगर अरबों को रखा जाता तो ज़ाहिर बात है कि अरबों का मिजाज और अजमियों का मिजाज ये अलग अलग है। अरबों का मिजाज और दूसरे मुल्कों का मिजाज अलग अलग है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अरबों के भी नबी हैं, अजमियों के भी नबी हैं, बल्कि आलमी नबी है, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने मेयार करार दिया। पाकीज़ा चीज़ें जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई या अक्ल इंसानी जिनको पसंद फरमाती है और उसी को अच्छा समझती है, इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और तय्यबा और पाकीज़ा करार दिया। नबी के मुकाबले के अंदर में शैतानी मिजाज को जो नबी के मिजाज के ख़िलाफ़ होता है, हलाल और तय्यबा के मुकाबले के अंदर में ये नबी का मिजाज है जो हलाल और तय्यबा को पसंद करे, और शैतान का मिजाज है हराम और खबीस चीज़ों को पसंद फरमावे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने जो हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को मेयार करार दिया हुआ है, उसी के मेयार के मुताबिक खाओ पियो और उसी के मुताबिक चलो। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के कदमों की इत्तिबा और पैरवी मत करो। खुतवात ये खुतवतुन की जमा है। आदमी चलता है, एक पाँव ठहरता है और दूसरा पाँव आगे चलता है, इन दोनों पाँव के बीच के अंदर में जो जगह पड़ती है उसी को खुतवतुन कहते हैं अरबी के अंदर में, और उसी को जमा के सीगे के साथ में उसको खुतवात कहा गया, जिनको हम और आप कदम कहते हैं। शैतान के कदमों की इत्तिबार पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीनुन, बेशक वो यानी शैतान तुम्हारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। मुफ्ती सभी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर के अंदर में एक जामे और माने बात बतलाई है कि इंसान की दुनियावी और उखरवी नजात के लिए एक चीज़ है फ़राइज़ का अहतमाम करना, फ़राइज़ की पाबंदी करना, फ़राइज़ को अदा करना और हराम चीज़ों से बचना। दो, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना। मुफ्ती सभी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के मातहत में लिखा कि अगर कोई आदमी फ़राइज़ का पाबंद है और हराम से बचता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अगर वो अदा करता है तो ये उसकी कामयाबी के लिए काफ़ी है। दुनिया के अंदर में भी वो कामयाब है और आखिरत के अंदर में भी वो कामयाब है। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इन्नमा यामुरुकुम, यकीनन
शैतान तुमको हुक्म देता है बिस्सूई वल फहशाई। सू का माना है बुरी चीज़ और फहशा का माना है फाहिश चीज़। बाज़ लोगों ने लिखा है कि अक्लमंद इंसान जिस चीज़ को बुरा समझे उसको सू कहते हैं, और शरीयत ने जिन चीज़ों को मना फरमाया है उन चीज़ों को करना ये फहशा कहलाता है। और बाज़ लोगों ने सू का माना आम मासियत का बयान किया हुआ है और फहशा का माना ज़ीनाकारी का लिया हुआ है। यकीनन शैतान तुमको बुराई का हुक्म देता है और फहशकारी और ज़ीनाकारी का हुक्म देता है। वन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तालमून, और शैतान तुमको ये हुक्म देता है कि अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ तुम ऐसी बातें बोलो कि जिनको तुम जानते नहीं हैं। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का ज़िक्र फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता, यानी मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार किससे कहा जाता, इत्तबिऊ, इत्तिबा करो, पैरवी करो, मा अंज़लल्लाहु, उन चीज़ों की जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा। कालू, तो ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार कहते हैं, बल नत्तबिऊ, नहीं, हम तो ये जो कुछ भी अल्लाह ने उतारा हुआ है उसकी इत्तिबार पैरवी नहीं करेंगे। बल नत्तबिऊ, बल्कि हम इत्तिबार पैरवी करेंगे मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, उन चीज़ों की कि जिन चीज़ों पर हमने हमारे बाप दादाओं को पाया है। अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलून शैअन वला यहतदून, अगरचे उनके बाप दादा ऐसे हैं कि कुछ अक्ल नहीं रखते और कुछ दीन की रहनुमाई नहीं रखते। इस चीज़ को लेकर और इस आयत को लेकर बहुत से लोग, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है बल्कि मुक़ल्लिदीन के ऊपर में एतराज़ करते हैं, तक़लीद करने वालों के ऊपर में एतराज़ करते हैं और इसी आयत को इस्तिदलाल के तौर पर पेश करते हैं कि ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का काम था अपने बाप दादाओं की पैरवी करना। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ये बुतों की पूजा करते थे, बुतों की परस्तिश करते थे, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते थे, इबादत के अंदर में भी, ज़ात के अंदर में भी और सिफ़ात के अंदर में भी और अफ़आल के अंदर में भी ये लोग शरीक ठहराते थे। इसलिए कुरान ने और शरीयत ने ऐसी अंधी तक़लीद करने से और अंधी पैरवी करने से मना फरमाया कि आपके बाप दादा यानी मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के बाप दादा जो है वो खुद मुशरिक थे, वो खुद काफिर थे, वो रहनुमाई नहीं पाते थे, वो दीन पर नहीं चलते थे, तो उनकी इत्तिबार पैरवी करना ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ जो तक़लीद है, हम जो मुक़ल्लिदीन कहलाते हैं, इसका माना और मतलब सिर्फ ये है कि किसी कुरान और हदीस के माहिर आलिम दीन की ज़ात पर और उसके इल्म पर और उसकी तहकीक पर एतमाद और भरोसा करके दलील का मुतालबा किए बग़ैर उसकी बात को मान लेना, ये है तक़लीद। बस इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और हदीस से जो समझा तो हमने उन पर एतमाद और भरोसा करते हुए उनकी बात को हमने मान लिया और उन पर हमने एतमाद और भरोसा किया। इसी को कहते हैं तक़लीद। हम जो है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी पैरवी नहीं करते कि हम अल्लाह के साथ उनको शरीक ठहराते हों या उनको रसूल का दर्जा हम देते हों। सिर्फ कुरान को जो उन्होंने समझा और अहादीस को समझा और इस समझने के बाद में जो मसाइल साबित किए, उन मसाइल के ऊपर में हम चलते हैं। और ये तक़लीद और इज्तिहाद का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। बाबुल इज्तिहाद मफ्तूहुन, इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला है। आज भी अगर कोई आदमी बराह रास्त कुरान से समझे
अहादीस सहीहा से समझे और इज्तिहाद करे तो इसके लिए इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला है। लेकिन एक बात यह है कि जब उलमा किराम ने और सहबा किराम ने कुरान और हदीस का निचोड़ हमारे सामने बयान कर दिया है, सिर्फ हमको अमल करना है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का जब मुनाजरा हुआ था गैर मुकल्लिदीन के साथ में, तो गैर मुकल्लिदीन और अहले हदीस ने खुद कहा था अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को कि तुम खुद इमाम हो, तुम खुद मुस्तहिद हो, तुम क्यों इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद और पैरवी करते हो। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं किसी की तकलीद नहीं करता, मैं किसी को मानता नहीं हूँ, मैं खुद कुरान और हदीस से मसाइल को साबित करता हूँ। लेकिन इत्तेफाक ये होता है कि जिस मसले को कुरान और हदीस से मैं साबित करता हूँ वो मसला ऐसा होता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कई सालों पहले उसको साबित कर चुके होते हैं। ये इत्तेफाक होता है कि मैं मसला साबित करता हूँ तो ऐसा ही होता है जैसा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मसले को साबित किया हुआ है। तो ये जो तकलीद का जो मसला है, तकलीद शख्सी, ये वाजिब है, इसलिए कि 4 इमाम हैं, चारों इमाम के मसलक के अंदर में अजीमत भी है, रुखसत भी है, सख्ती भी है, आसानी भी है। अब अगर एक इंसान चारों इमामों के अंदर में से आसानी ले ले और सख्ती को दूर कर दे तो इसका नाम दीन नहीं है, ये तो दीन के साथ में मजाक है या दीन को खिलौना बना लिया। इसलिए एक आदमी की तकलीद जो है उसको वाजिब करा दिया गया, उसके लिए दलाइल भी है। बहर के अब ये सिर्फ इतना बतलाना मुनासिब समझा कि इस आयत को गलत इस्तेमाल करके लोग हमारे ख़िलाफ़ के अंदर में लोग पेश करते हैं, यानी गोया हमने जो है हमारे बाप दादाओं को जैसा पाया इसी के मुताबिक हमने अमल किया, तकलीद के ख़िलाफ़ इसको पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार उनकी मिसाल व मसलुल लज़ीना कफ़रू, उन लोगों की मिसाल जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह की सिफ़ात का और इस्लाम का। कमसलिल लज़ी यनइकु, उस आदमी की तरह है कि जो पुकारता है, बिमा ला यस्माउ, ऐसे जानवरों को कि जो सुनते नहीं हैं, इल्ला दुआअन व निदाअन, मगर एक पुकारना और चीखना और चिल्लाना और बुलाना। एक आदमी है जो जानवरों को पुकारता है, जाहिर बात है कि जानवर जो है उसकी बात को समझते नहीं है, इसकी पुकार को सुनते नहीं है, तो ये काफिरों की मिसाल ऐसी ही है। व मसलुल लज़ीना कफ़रू, उन लोगों की मिसाल जिन लोगों ने कुफ्र किया, ऐसी मिसाल है जैसा कि कोई आदमी पुकारता है ऐसे जानवरों को कि ला यस्माउ, जो सुनते नहीं हैं। जानवरों को पुकारना गोया एक पुकार ही पुकार है और एक आवाज़ ही आवाज़ है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, अंधे हैं, इसकी वजह सुम्मुन, ये जो है वो बहरे हैं, हक बात को सुन नहीं सकते। बुकमुन, गूंगे हैं, हक बात को बोल नहीं पाते। उम्युन, अंधे हैं। ये काफिरों की मिसाल है। ला याकिलून, इसलिए वो समझते नहीं हैं। इसकी तफसीर के अंदर में इमाम राजी वगैरह ने लिखा हुआ है, दूसरे उलमाए किराम ने भी लिखा हुआ है कि इल्म जो हमारे पास आता है तो उसके 3 असबाब हैं। एक है हवा से खमसा ज़ाहिरा, ये इंसान के बदन के अंदर में है। मिसाल के तौर पर ज़बान के ऊपर में अल्लाह ताला ने क़ुव्वत ज़ायक़ा रखी हुई है। ज़बान पर कोई चीज़ रखेंगे तो इसकी वजह से पता चलता है कि ये चीज़ खारी है कि मीठी है कि नमकीन है। और दूसरी है क़ुव्वत लामेसा, ये बदन के ऊपर में रखी हुई है। किसी की चीज़ का ठंडा होना, गर्म होना,
नरम होना, खुरदुरा होना, या बर्फ़ की ठंडक या आग की गर्मी, ये इंसान के बदन के अंदर में जो चमड़ी के ऊपर में फैली हुई ताकत है, इसके ज़रिए से इल्म हासिल होता है। और तीसरा है क़ुव्वत साम्मा, नाक के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने सूंघने की ताकत रखी हुई है, इसके ज़रिए से भी इल्म हासिल होता है। और चौथी चीज़ है क़ुव्वत सामिया, सुनने की ताकत कान के ज़रिए से। और पांचवी चीज़ है क़ुव्वत बासिरा, देखने की ताकत, आदमी को देखने के ज़रिए से भी इल्म हासिल होता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये 5 चीज़ें अपना काम करना जब बंद कर दे, उसके बाद में अक्ल इंसानी काम करती है, इल्म हासिल होता है अक्ल इंसानी के ज़रिए से। ऐसे वक्त के अंदर में कि आदमी न चखने के ज़रिए से, न पकड़ने के ज़रिए से, न सूंघने के ज़रिए से, न देखने के ज़रिए से, और न सुनने के ज़रिए से इल्म हासिल कर सके, उसके बाद में अक्ल का दायरा शुरू होता है। ये अक्ल जो है उसका भी एक मेयार है। जिस तरीके से इंसान के बदन के अंदर में जो 5 चीज़ें रखी हुई है, उसका भी एक मेयार और मफ़हूम है, उससे आगे आगे वो काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से अक्ल का भी एक मेयार है, उसका भी एक दायरा है, वो वहाँ तक काम करती है, उसके बाद में वो काम करना बंद कर देती है। जहाँ पर इंसान में रखी हुई 5 चीज़ें काम करना बंद कर दे, अक्ल इंसानी ये भी अपना काम करना बंद कर दे, तो तीसरे नंबर पर काम करती है वही इलाही। वही इलाही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो वही नाजिल की गई, ये वही इलाही काम करती है। इसीलिए अक्ल का दायरा जब ख़त्म हो गया, उसके बाद में वही इलाही का दायरा शुरू हुआ, या अक्ल का एरिया ख़त्म हो गया और वही इलाही का इलाका और दायरा शुरू हुआ, तो अक्ल इंसानी के ज़रिए से अगर कोई आदमी वही इलाही को यानी कुरान को और हदीस को समझना चाहे तो वो समझ सकता नहीं है, उसके बस की बात नहीं है, उसके मेयार की, उसके काबू की बात नहीं है। इसको यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि वमसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइकु बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। बहरे हैं, हक बात को सुन नहीं सकते, बुकमुन गूंगे हैं, हक बात बोल नहीं सकते, उम्युन अंधे हैं, हक बात को देख नहीं सकते, फहुम ला याकिलून वो समझ सकते नहीं हैं। इसके बाद में अब अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह कर के ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने दावत दी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, उन पाकीज़ा रोज़ियों में से जो हमने तुमको दी, वश्कुरू लिल्लाही, और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले वाली आयत के अंदर में अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, बनी इसराइल का, फिर बनी इस्माइल का, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज़ें हलाल और हराम की शक्ल के अंदर में नाजिल की, उसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान फरमा रहे हैं, यानी अहकाम को बयान फरमा रहे हैं। उन अहकाम को बयान करने से पहले ये आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, उन पाकीज़ा रोज़ियों में से जो हमने तुमको दे रखी है, वश्कुरू लिल्लाही, और अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो। अब अल्लाह तबारक व तआला आगे हलाल चीज़ों को बयान करना चाहते हैं। दुनिया के अंदर में मशरिक़ से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए पैदा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया
खुलिक लकुम व इन्नमा खुलिकतुम लिल आखिरा, दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई और तुमको आखिरत के लिए बनाया गया। दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें जो पैदा की गई है ये इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की गई है, इंसान को फ़ायदा हासिल करने के लिए पैदा की गई है। तो अगर हलाल चीज़ों की फहरिस्त, हलाल चीज़ों की लिस्ट, हलाल चीज़ों की यादी अगर अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस के अंदर में ज़िक्र फरमाते तो कुरान बहुत बड़ी किताब हो जाती, या हदीसें भी बड़ी, हदीसों की भी बड़ी किताबें हो जाती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल चीज़ों को ज़िक्र नहीं किया, हराम चीज़ों को ज़िक्र किया। आखिर के अंदर में जहाँ चौथे पारे के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के हलाल और हराम होने का जो तज़किरा किया है, अब ये हिल्लत और हुर्मत, हलाल और हराम होने का तज़किरा चलता रहेगा। सूरह निसा के अंदर में भी है, सूरह बकरा के अंदर में भी है। सूरह निसा के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने वो औरतें जो हराम थी उन औरतों का ज़िक्र फरमा दिया। जो औरतें हलाल हैं उनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने नहीं किया। जो औरतें हराम हैं, जिनके साथ में निकाह करना हराम है, उनको अल्लाह ताला ने ज़िक्र कर दिया। और उन औरतों को ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन औरतों के अलावा दुनिया भर की जितनी भी औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हर जगह के अंदर में हराम चीज़ों को ज़िक्र कर देता है कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए हराम हैं, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल है। इसी पर उलमाए किराम ने लिखा है कि हर चीज़ के अंदर में असल हिल्लत है। हिल्लत है यानी किसी चीज़ का हलाल होना है, हर चीज़ के अंदर में असल हलाल होना है। अगर शरीयत की तरफ से कोई हुक्म ना आवे, शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी ना आवे, शरीयत की तरफ से कोई मनाही ना आवे, वहाँ तक जो है वो हलाल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर में कुछ चीज़ों को ज़िक्र किया। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि फमन इत्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। यकीनन हराम किया तुम पर मुर्दा को, मैता मुर्दा जो खुद ब खुद मर गया हो, या आगे दूसरी आयत के अंदर में आता है कि किसी पहाड़ पर से गिर गया, मर गया, या किसी सींगदार जानवर ने जो उसको सींग मारी और मर गया, और किसी दीवार के नीचे दब करके मर गया। तो मुर्दा जो है इसका खून बहता नहीं है, इसका खून उसके बदन के अंदर में बाकी रहता है। ये मुर्दा जो है वो हराम है। वह दमा, और खून भी हराम किया अल्लाह तबारक व तआला ने। वह लहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि मुर्दा हर हाल के अंदर में हराम है, खून हर हाल के अंदर में हराम है। लहमुल खिंजीर, सूअर का गोश्त, गोश्त के साथ साथ सूअर का हर जुज़ हराम है, उसका बाल और उसकी हड्डी और जितनी भी चीज़ें हैं। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि, और वो जो कि वो जानवर कि जिस नाम पुकारा गया हो, जिस जानवर के ऊपर में ज़बह करने के वक्त में गैरुल्लाह का। अहल्ल युहिल्लु, एहलाल का माना है चाँद देख करके चाँद की खबर देना, चाँद देख करके खुश होना, चाँद की खबर देना, इसको कहते हैं उहिल्ला। अब ये जो है ऐलान करने के माने के अंदर में, या गैरुल्लाह के ऊपर में जब चढ़ावा चढ़ाते हैं तो गैरुल्लाह का जो नाम लेते हैं इसके लिए बोला गया। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि, गैरुल्लाह के ऊपर में जिसका नाम बोला गया हो। मूर्ति और बूतों के ऊपर में किसी जानवर को ज़बह करने के वक्त ये कहा गया कि मैं फलानी देवी
या फलानी देवता के नाम, इसको मैं ज़बह करता हूँ, ये भी हराम है। फमन इत्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन, जो आदमी हालत इस्तिरार के अंदर में हो जावे। हालत इस्तिरार किसको कहते हैं? हालत इस्तिरार कहते हैं कि अगर आदमी मुर्दा नहीं खाएगा तो मर जाएगा, शराब नहीं पिएगा तो मर जाएगा, खून नहीं पिएगा तो मर जाएगा, इसको कहते हैं हालत इस्तिरार। और इसी के ऊपर में उलमाए किराम ने जो है एक उसूल बयान किया हुआ है इस आयत के ज़िम्न में, इस आयत के मातहत के अल माज़ूरात तुबीहुल महज़ूरात, उज़र हैं, माजूर हैं, तो ये ममनू चीज़ों को जो है वो जायज़ करार देती है। अज़्ज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, जो ज़रूरतें हैं ये ममनू चीज़ों को मबाह और जायज़ करार दे देती है। लेकिन ज़रूरत किसको कहते हैं? ज़रूरत कहते हैं कि अगर आदमी खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, इस्तेमाल नहीं करेगा तो मर जाएगा, इसको कहते हैं ज़रूरत। आपने मकान बनाया, आपका एस्टीमेट था 15 लाख रुपए का, उसके अंदर में फिनिशिंग ये सब कुछ था 15 लाख, लेकिन आपने 15 लाख जो है मकान ही के अंदर में लगा दिए, 2 माले के बजाय 3 माला बना दिया। अब ये सारी फिनिशिंग और ये सब लाइटिंग और ये क्या कहते हैं टाइल्स और सब कुछ बाकी है कि मुझे ज़रूरत है और मैं बैंक से सूद लेना चाहता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी इसको फिनिशिंग न करे, ऐसा ही रखेगा तो आदमी मरेगा नहीं। ज़रूरत उसको कहते हैं कि जिसको इस्तेमाल न करने की वजह से आदमी मर जावे, इसको कहते हैं ज़रूरत। ज़रूरत की वजह से जो है हराम चीज़ें जायज़ होती है, मबा होती है, हलाल नहीं होती, जायज़ और मबा होती है। इसीलिए आगे अल्लाह ताला ने फरमाया गैर बागिन वला आदिन, ये जो ज़रूरत की वजह से अगर कोई मुर्दा खावे या सूअर का गोश्त खावे या खून पिए तो उसको तलब करने वाला न हो और रग़बत के साथ में न खावे, वाला आदिन, और हद से तजावुज़ भी न करे। 2 लुक़मा खाने से अगर जान बच सकती है तो 2 लुक़मा खावे, या सूअर का गोश्त 2-4 लुक़मों से अगर जान बच सकती है तो इतना खावे, इससे ज़्यादा न खावे। वाला आदिन फला इस्म अलैह, तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। हराम चीज़ को भी इस्तेमाल करने में कोई गुनाह नहीं है। इसी पर उलमाए किराम ने एक उसूल मुतय्यन किया है कि ज़रूरत तो तक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरत, जो चीज़ ज़रूरत की वजह से जायज़ करार दी जाती है वो चीज़ ज़रूरत जितनी ही जायज़ रहती है, उससे आगे वो जायज़ रहती नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे अगर कोई हद से तजावुज़ करेगा तो फिर गुनहगार होगा। गैर बागिन वला आदिन फला इस्म अलैह इन्नल्लाह गफूरुन रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है। मुर्दा खा लिया या खून पी लिया, ज़रूरत की वजह से सूअर का गोश्त खा लिया, फिर अगर दिल के अंदर में जो है कोई एहसास पैदा हुआ कि मैंने मुर्दा खा लिया, तो ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। उसी ने मना किया था, उसी ने हराम किया था और उसी ने ज़रूरत की वजह से जायज़ करार दिया, तो इसमें दिल के अंदर में शक शुबा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ़ करने वाला है और बड़ा रहम करने वाला है। फिर उसके बाद में आगे अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद और नसारा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को छुपाते थे उनका तज़किरा किया। आइंदा कर इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। सुभान अल्लाह।